extract. So today we will be studying about road traffic accidents. Okay, you know, in India approximately 2 lakh deaths occur in 1 year due to road traffic accidents. So it's a major chunk of deaths due to road traffic accidents. So we'll divide the injuries in pedestrian, cyclist or motorcyclist accidents or occupant of a vehicle. So basically these type of road traffic accidents injuries can be broadly classified. Now the traffic accidents, basically otherwise known as the motor vehicle collision or motor vehicle accident, car accidents, automobile accidents, or road traffic collisions or road traffic accidents and all, these are other terms, similar terms. Now just move on to the injuries caused to pedestrian. Okay, pedestrian को क्या क्या injuries होती हैं? So basically we'll divide these injuries into 3 patterns. Okay, first is the impact injury. Okay, when vehicle strike the victim. Okay, suppose this is the victim and vehicle is striking to the victim, so these are impact injuries. Okay, now the secondary injuries due to victim falling on the ground or striking any other stationary object other than the vehicle, these are the secondary injuries. Now the third is run over injuries, when vehicle has crossed the pedestrian, these are known as the run over injuries. Basically vehicle is running over some part of victim, so these are run over injuries. Okay, now what are impact injuries? Okay, what are impact injuries? Impact injuries can be further divided into primary impact injuries or secondary impact injuries. Okay, now the primary impact injuries are basically due to initial impact of the vehicle. Okay, vehicle का initial impact हुआ, suppose this is the pedestrian और यहाँ से vehicle आ रहा है, this side से इसका first impact हुआ, so this is due to initial impact of the vehicle. The projection of vehicle can cause specific injuries, like vehicle के आगे bumper होते हैं तो bumper fractures can be there. Okay, we will discuss this in detail. Height of pedestrian is very much important. Okay, इसलिए pediatric population में और adult population में अलग अलग level पे injuries होती हैं. Now the secondary impact injuries are subsequent impact with the vehicle. vehicle पे ही दोबारा से impact हो रहा है pedestrian का, इससे secondary impact injuries होती हैं. So let's understand them with the diagram. So this is the impact of the bumper. Pedestrian is crossing the road, vehicle यहाँ से आता है और primary impact होता है. So that's why these are known as primary impact injuries. Okay, there may be impact, impression or impact or the patterned injuries on this part of the adult. Now the height, suppose यहाँ पे कोई बच्चा होता तो उस पे जो इंजरीज का जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, वो अलग होती है. ठीक है, अडल्ट होगा, हाइट ज़्यादा होगी तो फिर उसमें अलग होगा लेवल. आप चल रहे हैं या स्टैंडिंग पोजीशन में, उसके बेसिस पे भी इंजरीज अलग अलग पोजीशन या फिर लोकेशन पे होती है. अब क्या हुआ, यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ, उसके बाद में वापस से जो पेडिस्ट्रियन है वो व्हीकल पे गिरता है. हुड विंडस्क्रीन का इम्पैक्ट होता है, बोनट पे गिरेगा. सो इससे जो इंजरीज हो रही हैं वो सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरीज होती है. मोस्टली चेस्ट पे लगेगी, एब्डोमेन पे लगेगी, तो इस एरिया पे जो इंजरीज हैं इनको बोलते हैं सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरीज, बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट द सेकेंडरी इम्पैक्ट विद द व्हीकल इटसेल्फ. ओके, नाउ द सेकेंडरी इंजरीज, इसमें इम्पैक्ट नहीं हो रहा है. सेकेंडरी इंजरीज, इस पे क्या होता है, जो पेडिस्ट्रियन है वो ग्राउंड पे इम्पैक्ट करता है और किसी अदर हार्ड सरफेस जो है उस पर गिरता है, उससे जो चोट आती है, हेड इंजरीज कॉमनली इसमें मिलती हैं, इनको बोलते हैं सेकेंडरी इंजरीज. ओके, सो दीज आर नोन एज सेकेंडरी इंजरीज. यूजुअली जो प्राइमरी इम्पैक्ट होता है, सपोज प्राइमरी इम्पैक्ट इस साइड हुआ, ये व्हीकल पे गिरा, सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरीज, तो इसके ऑपोजिट साइड में, प्राइमरी इम्पैक्ट के ऑपोजिट साइड में ये मिलती हैं. यूजुअली अनक्लोथ जो एरिया होता है, अनप्रोटेक्टेड जो एरिया है बॉडी का, उस पे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होती हैं ये तरह की इंजरीज. फिर कुछ रन ओवर इंजरीज भी हो सकती हैं, यानी जो बॉडी पार्ट व्हीकल के कांटेक्ट में, सपोज दिस इज द व्हीकल, इसके क्या बॉडी पार्ट कांटेक्ट में आ रहा है उस पर डिपेंड करती हैं, और वेट ऑफ द व्हीकल ऑब्वियसली
वेट ऑफ द व्हीकल पे भी डिपेंड करती हैं। इसमें डीग्लोविंग इंजरी हो सकती है, कंप्लीट स्किन ही छिल जाए, स्किन के अलग हो जाए, डीग्लोविंग। टायर मार्क्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ इंजरीज। बर्न्स हो सकते हैं, ब्रश बर्न, ग्रेवल रैश टाइप, अवल्जर इंजरीज भी हो सकती हैं। ओके, सो ये सारी रन ओवर इंजरीज में आता है। सो प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरीज बेसिकली हमने देखा कि पहले व्हीकल का इम्पैक्ट हुआ, उससे ये इम्पैक्ट इंजरीज हो रही हैं। जैसे ये एग्जांपल आपने देखा, ये है व्हीकल का ग्रिल, जो फ्रंट ग्रिल होता है उसका इम्प्रेशन आ गया एब्डोमेन पे। ओके, प्राइमरी इम्पैक्ट तो था वो एब्डोमेन के लेवल पे था। ओके, व्हीकल का ग्रिल का इम्प्रेशन, दिस इज ए इम्पैक्ट एब्रेजन इन द फॉर्म ऑफ इम्पैक्ट एब्रेजन। Okay, so impact, or there is a pattern, so this pattern can be used for cross checking, okay, for matching with the alleged vehicle, क्रॉस मैचिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। नाउ इस पेशेंट में बेसिकली द लीवर वाज लैसिरेटेड एंड स्प्लीन वाज आल्सो लैसिरेटेड, इंटेस्टाइन में भी इंजरीज थी और देयर वाज अराउंड 2 लीटर कलेक्शन गॉट क्लॉटेड एज वेल एज fluid and clotted blood was there in the abdominal cavity or the peritoneal cavity, and patient died due to hemorrhagic shock. ओके, सो इस तरह की इंजरीज हुए हैं, इम्पैक्ट इंजरीज, ये कॉमनली मिलती हैं आरटीए में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। अब इसमें जो इंप्रेशन है वो प्रीवियस जो केस था उसमें बम्पर का इंप्रेशन आया, ग्रिल का आया, विंग्स का आ सकता है, हेड लैम्प का इंप्रेशन आ सकता है, फेंडर्स का आ सकता है, रेडिएटर का आ सकता है, डोर ग्रिल। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टैक्ट, द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, पेडिस्ट्रियन और व्हीकल का जो एरिया है वो कौन सा एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है, उसके लेवल पे और उस तरह का ही आपको पैटर्न एब्रेजन देखने को मिलेगा, पैटर्न एब्रेजन, सो दैट यू कैन क्रॉस चेक विद द एलिज्ड व्हीकल ऑफ ऑफेंस। ओके, नाउ अलग अलग बॉडी पार्ट लाइक फ्रंट पे इम्पैक्ट हो रहा है कार या व्हीकल का, साइड इम्पैक्ट हो रहा है, स्टैंडिंग है, वॉकिंग है या फिर लाइंग है, इसके बेसिस पे भी अलग अलग टाइप की इंजरीज होती हैं। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजरी है, बार बार पूछा जाता है, व्हाट आर बम्पर फ्रैक्चर्स। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज ए फ्रैक्चर, टिबिया का फ्रैक्चर होता है। ठीक है, इट्स ए वेज शेप फ्रैक्चर एंड बेसिकली द ट्रायंगुलर जो फ्रैगमेंट है टिबिया का, द ट्रायंगुलर फ्रैगमेंट लाइक दिस इज द बम्पर फ्रैक्चर। सपोज यहाँ से व्हीकल आ रहा है, इस साइड से पेडिस्ट्रियन यहाँ खड़ा हुआ है, इम्पैक्ट होता है इस लेवल पे, लेग्स के लेवल पे। ओके, सो बम्पर इम्पैक्ट पे क्या होता है, जब व्हीकल इस साइड से क्रॉस कर रहा है तो ये वाला जो वेज बनेगा, वेज शेप फ्रैक्चर ऑफ टिबिया। सो ये वाली जो साइड है, वाइडर एरिया, जो बेस ऑफ द ट्राइंगल, ये वाला, ये दिखाता है द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल, लाइक व्हीकल इज कमिंग फ्रॉम दिस टू दिस साइड, एंड द एपेक्स ऑफ द वेज शोज that vehicle was going towards that direction. So this is known as bumper fracture. This is very characteristic bumper fracture which is seen in road traffic accident injuries. Okay, now चिल्ड्रन में क्या होगा, यूजुअली बम्पर फ्रैक्चर लोअर लेवल पे होगा क्योंकि उनकी हाइट कम है। ओके, यूजुअली इनमें जो है वो जो फ्रैक्चर ऑफ फीमर जो है दैट इज मोर कॉमन। ठीक है, मे बी यदि स्टैंडिंग पोजीशन में कोई है तो उनमें क्या होगा, दोनों की दोनों लेग्स अफेक्ट हो जाती हैं। यदि कोई चल रहा है तो सिंगल लेग अफेक्ट होगी फ्रैक्चर में। ओके, सो अडल्ट जो है उसमें और चिल्ड्रन में, दोनों में जो बम्पर फ्रैक्चर है, इन इंजरीज का डिफरेंस के लेवल पे, डिफरेंट लेवल ऑफ 2 लेग्स पे इंजरीज की साइट को देख के हम पता लगा सकते हैं कि द पर्सन वाज इन स्टैंडिंग कंडीशन और वॉकिंग। ओके, सो वाइल द विक्टिम वाज स्टैंडिंग पे था या फिर वॉक कर रहा था, इसके बेसिस पे हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। नाउ जब क्या होता है, ये पेडिस्ट्रियन है, यहाँ से कोई व्हीकल आ रहा है, व्हीकल ने एकदम से लगाया ब्रेक, तो ये बम्पर जो है, ये वाला जो एरिया व्हीकल का, जब इसको डिसलरेट होता है तो व्हीकल का ये एरिया थोड़ा सा नीचे आ जाता है। सो दैट्स व्हाई इंजरीज जो है वो कुछ लोअर लेवल पे मिलती है एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, बिकॉज द फ्रंट पार्ट ऑफ द व्हीकल थोड़ा सा सिंक हो जाता है, दैट्स व्हाई देयर आर द इंजरीज प्रेजेंट स्लाइटली एट लोअर लेवल। ओके, अब नाउ द
famous triad that is known as Weddell's triad. This is the famous triad which is seen in pediatric population or the adult population at different levels. ठीक है, और ट्रायड में क्या मिलेगा, यदि बच्चा है, बच्चे की हाइट कम है तो उसमें इंजरीज जो होंगी वो थोड़ा ऊपर की तरफ होंगी, अडल्ट की हाइट ज़्यादा है तो उसमें इंजरीज थोड़ा नीचे की तरफ होंगी, ठीक है, इस तरह से। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंपैक्ट इंजरीज होती हैं। दिस इज द प्राइमरी इंपैक्ट। सबसे पहले व्हीकल का इंपैक्ट हुआ तो शाफ्ट का फ्रैक्चर हो गया, फीमर का शाफ्ट का फ्रैक्चर हो गया। अडल्ट होगा उसमें टिबिया का फ्रैक्चर हो जाएगा स्लाइटली लोअर लेवल पे। सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरी, दीज आर प्राइमरी इंपैक्ट इंजरीज। ओके, ये हो रहा है सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरीज और ये है सेकेंडरी इंजरीज। ओके, अब थोरेक्स पे लगा, चेस्ट पे लगा और एब्डोमेन पे लगा, ये सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरीज होगी, और हेड पे लगी कॉन्ट्रालेटरल हेड इंजरीज। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक ट्रायड इज नोन एज वेडल्स ट्रायड विच इज सीन इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इंजरी। ठीक है, नाउ द फ्रैक्चर्स लाइक लिम्ब का फ्रैक्चर हो सकता है, ओके, लाइक टोज, लेग्स का फ्रैक्चर है, ये सारे फ्रैक्चर्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंपैक्ट में मिल सकते हैं। टर्शियरी इंपैक्ट को सेकेंडरी इंजरीज भी बोला जाता है। ठीक है, पेडिस्ट्रियन एक्सीडेंट कॉमन कोज जो होता है वो क्या होगा, या तो हेड इंजरी होगी या फिर फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, या फिर लंबे समय तक मैनेज नहीं किया, कोई चेस्ट ट्रॉमा हो गया, एब्डोमिनल ट्रॉमा हो गया, इससे हो सकती है, बट दे आर मिनिमल और ऑलमोस्ट एब्सेंट। ओके, so brain damage is frequently associated, this damage, brain damage, suppose SDH हो गया, SAH हो गया, they are commonly seen without, in most of the cases without any skull fracture, although these two are not related। brain में बहुत ज़्यादा injuries हो सकती हैं without any skull fracture, and there may be multiple skull fractures without underlying brain damage, so both the injuries are not related to each other। okay, but brain damage ज़्यादा मिलता है रॉ ट्रैफिक इंजरीज में कि स्कल एकदम इंटैक्ट है और अंडरलाइंग ब्रेन में एसडीएस हो रखा है और एसएच हो रखा है। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉमन। फ्रैक्चर ऑफ स्कल, रिब का फ्रैक्चर हो सकता है, स्पाइन का फ्रैक्चर, विल डिस्कस इट, व्हाट आर दी हाइपर फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन इंजरीज क्या हो सकती हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें इसमें कॉमनली देखने को मिलती हैं आरटीए में। ये वेडल्स ट्रायड, ये सेम लाइक लोअर लिम्ब पे इंजरी हुई, फिर चेस्ट पे इंजरीज हो गई, सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरीज, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, एंड दीज आर टर्शियरी इंपैक्ट इंजरीज। सो दिस इज द वेडल्स ट्रायड इन चिल्ड्रंस। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मिलता है वेडल्स ट्रायड। ठीक है, अब क्या होता है गाइस, द वेट ऑफ द व्हीकल, दो चीज़ें हैं, एक तो वेट ऑफ द व्हीकल एंड द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्या करता है, इस चीज़ों से टायर मार्क का इंप्रेशन आएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं व्हीकल को, वी कैन ट्रेस द व्हीकल। ठीक है, अनक्लोथ और क्लोथ एरिया पे डिफरेंट होगा। द ग्रेज लाइक एब्रेजन की जो करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं उसके बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेड में भी कम्प्लीटली क्रस्ड हो सकता है, ठीक है, में भी डिस्टोर्शन और पूरा का पूरा ब्रेन और अंदर जो विसरा है वो भी बाहर मिल सकती है आपको। सो डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द इंजरीज की कितना क्रशिंग हुई है और कितनी द ओवरऑल द टाइप ऑफ इंजरीज की रन ओवर इंजरी है या किस तरह का पैटर्न था, उसके बेस पे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सपोज दिस इज द टायर, सो एपिडर्मल टीयर हो सकते हैं, सुपरफिशियल जो स्किन की लेयर है इसमें टीयर्स हो सकते हैं, एब्रेजन टायर मार्क्स आ सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये टायर स्किड मार्क्स हैं, जब भी आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो रोड पे इस तरह के स्किड मार्क्स बन जाते हैं। इन मार्क को एनालाइज करके, लाइक ये जो मार्क्स बन गए हैं इस तरह के, इनको बोलते हैं टायर ट्रेड मार्क्स। ठीक है, टायर ट्रेड मार्क्स। इन ट्रेड्स को एनालाइज करके, लेकिन इन ट्रेड्स की ये जो लाइन कितनी है, इनमें डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, इस तरह का पैटर्न, ये सब एक अलग कंपनी का पैटर्न, ये करेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है। सो टायर ट्रेड को अब हम आइडेंटिफाई करके यू कैन चेक और द आइडेंटिफाई और द ट्रेस द एलिज्ड व्हीकल। ठीक है, टायर मार्क जो है इसका विड्थ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी जा रही है, डायरेक्शन क्या है, दिस इज एवरी फाइंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेसिंग द एलिज्ड व्हीकल। अब क्या होता है, ये तो हो गया व्हीकल से इंजरीज। कई बार क्या होता है सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरीज में चेस्ट में इंजरीज हो गई, एब्डोमेन में, तो चेस्ट में कॉमन इंजरीज मिलती है, दैट इज फ्लेल चेस्ट। ओके,
मे बी ऑल्दो देयर में बी रप्चर ऑफ इंटरनल विसरा लाइक फ्रैक्चर ऑफ स्पाइन, स्टर्नम का फ्रैक्चर हो सकता है, रिब का फ्रैक्चर हो सकता है, बर्निंग और सिंजिंग हो सकती है स्किन की, ओके, बिकॉज ऑफ हॉट गैसेज एग्जॉस्ट से निकल रही है, एकदम से बर्निंग वगैरह भी हो सकती है। फ्लेल चेस्ट को डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, 3 से ज़्यादा 3 और मोर रिब्स आर ब्रोकन एट लीस्ट 2 प्लेसेस, ओके, लाइक 1 2 3 और मोर रिब्स आर प्लेसेस फ्रैक्चर एटलीस्ट 2 जगह से ज़्यादा। तो ये जो सेगमेंट है इट मूव्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ठीक है। होगा क्या बेसिकली, जब आप इंस्पायर करते हैं तो चेस्ट बाहर की तरफ मूव होता है, लेकिन ये वाला जो फ्रैगमेंट है जो टूट गया इट मूव्स इनसाइड। एक्सपीरेशन पे चेस्ट मूव अंदर करती है, लेकिन ये वाला सेगमेंट बाहर की तरफ मूव करता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, ओके। तो फ्लेल चेस्ट में पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन is characteristic finding that is seen due to fracture of ribs more than 3 ribs at least 2 places, okay। अब क्या होता है, जो व्हीकल के ऑक्यूपेंट हैं उनको क्या क्या इंजरीज हो सकते हैं। व्हीकल में कौन कौन है, या तो ड्राइवर हो सकता है, फ्रंट सीट पैसेंजर हो सकता है, इजेक्शन हो सकता है उनका, ठीक है, इजेक्शन ड्राइवर और पैसेंजर का इजेक्शन, और डोर बर्स्ट ओपन हो सकता है, अनबेल्टेड रियर सीट ऑक्यूपेंट्स, और ये सब इनको अलग अलग टाइप की इंजरीज मिलती हैं, ठीक है। नाउ सपोज एक फ्रंट इम्पैक्ट क्रैश होता है इस तरह का, पहले हम एक फ्रंट इम्पैक्ट क्रैश होता है इस तरह का, ठीक है, फ्रंट इम्पैक्ट क्रैश। तो इसको समझने के लिए पहले हम व्हीकल का एक फ्रेम चेक करते हैं, किस तरह से फ्रेम को डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जो ब्लू दिख रहा है, ये फ्रंट पिलर्स, विंडशील्ड और ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं ए पिलर, ठीक है, यहाँ तक। सेकंड वाला जो पिलर है, ये बीच वाला जो पिलर है, इसको बोलते हैं बी पिलर, जो रूफ वाला पार्ट बनाता है। एंड पीछे का जो पिलर्स हैं, पीछे वाले, इनको बोलते हैं सी पिलर, ठीक है। तो व्हीकल का बेसिक आर्किटेक्चर ए, बी एंड सी पिलर से बनता है। फ्रंट इम्पैक्ट क्रैश की बात कर रहे हैं हम, हेड ऑन कोलिजन लाइक दिस, इस तरह का इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। इस तरह के इम्पैक्ट में क्या होता है, यदि अनरिस्ट्रेंड ड्राइवर है, बेल्ट सीट बेल्ट नहीं पहना उसने, तो क्या होगा, इजेक्शन हो सकता है, बाहर जा सकता है, या फिर फ्रंट विंडशील्ड को तोड़ के बोनट से आगे आके क्रैश भी हो सकता है, ठीक है। अब मोस्टली जो है इनमें इंजरीज इस तरह के पैटर्न में मिलती हैं। फेस और हेड जो है ये इम्पैक्ट करता है विंडशील्ड और जो ए पिलर है उससे हेड इंजरीज मिलेंगी। स्पाइन में एक्सेलरेशन डिसेलरेशन इंजरीज मिलती हैं। स्टीयरिंग व्हील का इम्पैक्ट होगा चेस्ट और एब्डोमेन पे, तो सीट बेल्ट इंजरीज मिलेंगी। पेल्विस का इम्पैक्ट होगा यहाँ पे, तो पेल्विक फ्रैक्चर हो सकता है। लेग का डैशबोर्ड पे इम्पैक्ट होगा, तो ब्रेस्ट लेग इंजरीज ये हो सकती हैं। नीचे एंकल पे इंजरीज हो सकती हैं ड्यू टू एक्सेलरेशन और ब्रेक पैड को एकदम से दबाने से, ठीक है। सो ये फ्रंट कोलिजन की बात कर सकते हैं। इन पॉइंट्स पे आपको इंजरीज मिलेंगी बेसिकली, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन साइट ऑफ इंजरीज ड्यू टू सडन। अंदर की तरफ जो कोलिजन होगा तो जो व्हीकल है वो अचानक से रुकेगा। जब व्हीकल इस साइड में अचानक से ब्रेक लगाएगा, सो जो ऑक्यूपेंट है वो आगे की तरफ जाएगा, इसलिए इन साइड्स पे ये कॉमन इंजरीज देखने को मिलती हैं। तो यू कैन क्रॉस चेक कि व्हीकल की जो कोलिजन है वो कैसी था, फ्रंट हेड ऑन था या फिर साइड वे था। अब इसमें क्या होता है, रियर वे इम्पैक्ट यदि होता है, ये व्हीकल है इसको पीछे से किसी ने मार दिया, ठीक है, सो वायलेंटली एक्सेलरेट हो जाएगा, ओके। तो इसमें क्या होता है, वायलेंट एक्सेलरेशन में इस तरह से किसी ने पीछे से व्हीकल को टक्कर मार दी, वायलेंट, ये आगे की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन होगा। अब जब व्हीकल का एक्सेलरेशन होगा गाइस, तो उसमें क्या होता है, जो व्हीकल इज मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में व्हीकल जा रहा है, ठीक है। सो हेड और टोर्सो वाला पार्ट है, दिस वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है, लेग तो फिक्स्ड है, ये वाला तो नीचे की तरफ फिक्स्ड है, ये वाला पार्ट मूवमेंट रिलेटिव टू द व्हीकल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ओके। टोर्सो रैंप्स अप ऊपर की तरफ जाता है और हेड पीछे की तरफ रोटेट करता है। व्हीकल अभी भी फॉरवर्ड ही मूव कर रहा है, व्हीकल की मूवमेंट इसी साइड हो रही है क्योंकि पीछे से किसी ने टक्कर मारी है। टॉर्सो वापस से रिबाउंड करता है, हेड पीछे से अब रिबाउंड होके आगे की तरफ रोटेट करता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हाइपर एक्सटेंशन एट द सर्वाइकल स्पाइन, ये वाली जो मूवमेंट है हाइपर एक्सटेंशन मूवमेंट फॉलोड बाय हाइपर फ्लेक्शन, इससे सर्वाइकल स्पाइन में इंजरीज हो जाती हैं।
ये भी इंजरीज बहुत करेक्टरिस्टिक होती हैं आरटीए में। इनको बोलते हैं सर्वाइकल एक्सेलरेशन डिसेलरेशन इंजरीज और विप्लैश एसोसिएटेड डिसऑर्डर। साइन एंड सिम्टम में पेन और नंबनेस और लोकल साइंस होते हैं लाइक सेंसरी मोटर डेफिसिट और ये सब प्रेजेंट करता है। सो एक्सरे पे कैसे दिखेगा गाइस? नॉर्मली क्या होता है, सर्वाइकल स्पाइन का लॉर्डोसिस होता है, आगे की तरफ कर्वेचर होता है, इस तरह से सर्वाइकल स्पाइन का, ठीक है। लेकिन जो लिगामेंट है एंटीरियर द पोस्टीरियर एंड द एंटीरियर लिगामेंट में टीयर्स हो गए, तो जो कॉलम है, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो कॉलम है वो स्ट्रेट हो जाएगा। सो ये फाइंडिंग स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, ओके, दिस इज करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग सीन विद द एक्सेलरेशन डिसेलरेशन इंजरीज और विप्लैश इंजरीज। मैकेनिज्म को समझते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये आपकी वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसमें आगे की तरफ आपका एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट होता है, ठीक है, जो पीछे की तरफ जाने से रोकेगा, एंड पीछे की तरफ एक पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट होता है जो आगे की तरफ जाने से रोकेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। एक्सोक्सिपिटल प्रोट्यूबरेंस से नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है ये सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, स्पाइन के ऊपर ऊपर, जो कि यहाँ पे थोड़ा कंडेंस एरिया होता है, इसको लिगामेंट न्यूके बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्टिब्रा है, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसको आगे की तरफ जाने से रोकता है, और एक एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट होता है, ये इसको पीछे की तरफ जाने से रोकता है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, विप्लैश में सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हो रही हैं। डायरेक्शन ऑफ इंपैक्ट इस तरह से हुआ, हाइपर एक्सटेंशन हुआ, स्पाइन पे पीछे की तरफ जाएगा, तो एंटीरियर वाला जो लिगामेंट है ये टूट जाएगा, एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट। जब हाइपर फ्लेक्शन हुआ इस तरह से, सो जो पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट है, लिगामेंट न्यूक, वो टूट जाएगा। So because of tear of these two ligaments, there is imbalance at the level of the cervical vertebra, and this straightening of spine will be seen. Okay, so this is the mechanism of this whiplash injuries. अब क्या हुआ, पहले जो पुराने व्हीकल हैं इस तरह के, उनमें हेड रिस्ट्रेंट्स नहीं आते थे। ये मोबाइल है, ये फिक्स्ड वाला है। सो अब हेड रिस्ट्रेंट होने की वजह से एकदम से कोई इसको एक्सेलरेट करेगा, व्हीकल पीछे से टक्कर लगने से, या डिसेलरेट करोगे तो आपका हेड जो है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। सो जो मोमेंट है हाइपर एक्सटेंशन हाइपर फ्लेक्शन वाली, वो नहीं हो पाएगी। तो दैट्स व्हाई इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम विप्लैश इंजरीज, ओके। अब ड्राइवर में कौन कौन सी इंजरीज हो सकती हैं? स्टीयरिंग व्हील का इंपैक्ट हो सकता है, आर्म फ्रैक्चर, फोर आर्म फ्रैक्चर, टिबिया फिबुला, पेल्विस का फ्रैक्चर हो सकता है, ब्रेक और क्लच पैड की वजह से पैर में और जो फुट है इस पार्ट में इंजरीज हो सकती हैं, नी में इंजरीज हो सकती हैं डैशबोर्ड की वजह से, ठीक है। सीवियर जो स्टीयरिंग व्हील इंजरीज हैं ये कॉमन है, लाइक स्टीयरिंग व्हील की वजह से फेस पे इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है। चेस्ट पे कंट्यूजन्स हो सकते हैं, रिब फ्रैक्चर हो सकता है, स्प्लीन और एब्डोमिनल ट्रॉमा लाइक स्प्लीन और लीवर लेसरेशन हो सकते हैं। अब एक फ्रंट सीट पैसेंजर है गाइस, उसमें क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं? उसमें एक इंपॉर्टेंट इंजरी तो विप्लैश हो गया, ओके। फिर दूसरा आता है स्पैरो फुट मार्क। कैसे पता करोगे कि जो व्हीकल है जिसमें एक्सीडेंट में बहुत सारी मल्टीपल बॉडीज मिली हैं, उसमें फ्रंट सीट पे कौन था? तो स्पैरो फुट मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, इस तरह का मिलता है। इस तरह के मल्टीपल एब्रेजन और पंक्टेड लैसरेशंस मिलते हैं आपको, जो कि एक स्पैरो फुट की तरह दिखता है। दिस इज स्पैरो फुट, और ऐसे लगता है स्पैरो के मल्टीपल फुट मार्क्स हैं, बिकॉज ऑफ द लैमिनेटेड जो विंडशील्ड होती है, जो विंडशील्ड होती है कारों की, वो लैमिनेटेड होती है, और जब वो टूटती है उसके टूटने से जो ग्लास की जो मल्टीपल इंजरीज वो इस तरह की मिलती हैं, ये फ्रंट सीट पैसेंजर पे ही मिलती हैं। इनको बोलते हैं स्पैरो फीट मार्क्स। अब फ्रंट सीट पैसेंजर पे सीट बेल्ट भी होता है, एयर बैग्स भी होते हैं, तो ये दो टाइप की इंजरी भी कॉमन है, सीट बेल्ट इंजरीज और एयर बैग इंजरीज, ठीक है। एयर बैग इंजरीज से बेसिकली चेस्ट और फेशियल ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। नाउ सीट बेल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ द इजेक्शन और अदर सीवियर इंजरीज, लेकिन सीट बेल्ट से भी इंजरीज हो सकती हैं। सीट बेल्ट हम बेसिकली क्लासीफाई करते हैं 2 पॉइंट फिक्सेशन वाला, इस तरह का जो लैप से होकर निकलता है, इसको बोलते हैं लैप बेल्ट। फिर ये 2 पॉइंट फिक्सेशन वाला शोल्डर हार्नेस बोलते हैं इसको। एक 3 पॉइंट वाला होता है जो कॉमनली व्हीकल में यूज होता है, ये 3 पॉइंट फिक्सेशन। एक होता है 4 पॉइंट फिक्सेशन होता है ये, ठीक है, जो स्पोर्ट्स व्हीकल में यूज होते हैं। 5 पॉइंट फिक्सेशन भी होता है किस तरह का, ये भी
स्पोर्ट्स व्हीकल में यूज होता है। तो ये वाला जो लैप बेल्ट है ये एयरक्राफ्ट्स में यूज होता है, ये कॉमनली जो व्हीकल आते हैं जो 4 व्हीलर्स हैं उनमें यूज होता है, ठीक है। रिमेंबर द वियरिंग सीट बेल्ट 45% फैटिलिटीज़ जो हैं कम कर देता है, इट रिड्यूसेस 45% इंजरीज, ओके। इंजरीज बेसिकली लेस सीवियर होती हैं, प्रोबेबिलिटी हेड इंजरीज कम कर देता है, इजेक्शन कम कर देता है, इजेक्शन के चांसेस फ्यूअर, जो हेड इंजरी चेस्ट एब्डोमिनल इंजरीज कम होती हैं सीट बेल्ट से, ओके। अब लैप बेल्ट जो होता है, जो लैप पे जो बेल्ट लगा होता है, ये क्या करा सकता है, मीजेंट्री का टीयर हो सकता है, इंटेस्टाइन ओमेंटम लैसरेशन ऑफ बाउल करा सकता है। शोल्डर बेल्ट जो होता है वो लीनियर एब्रेजन डाउनवर्ड और मीडियली राइट साइड पे आ सकता है, और लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रंट सीट पैसेंजर पे अब्रेजन और कई तरह की इंजरीज और फ्रैक्चर करा सकता है। सीट बेल्ट मोर्टलिटी कम करता है, बट स्पेसिफिक पैटर्न वाली इंटरनल इंजरीज भी होती हैं सीट बेल्ट से। इस तरह की जो पैटर्न है, ये आपका जो शोल्डर हार्नेस है उससे होने वाली इंजरीज हैं। यू कैन ऑब्जर्व दिस abrasion, the contused abrasion or obliquely passing and involving the upper part of chest. अब एक चीज होती है जो कलेक्टिव टर्म जो है, that includes the various injuries produced as a result of seat belts, that is known as seat belt syndrome. ओके, इसमें क्लासिकल सीट बेल्ट साइन मिलेंगे, उसमें एक तो सीट बेल्ट मार्क ऑन द बॉडी, एब्डोमिनल ट्रॉमा लाइक बाउल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल इंजरीज और वर्टिब्रल ट्रॉमा, थोरेकोलम्बर वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स, ये सीट बेल्ट के सिंड्रोम के पार्ट हैं, ठीक है। नाउ हो क्या रहा है, यहाँ से रेस्ट्रिन कर रखा है, यहाँ से रेस्ट्रिन कर रखा है। सो सीट बेल्ट यदि थोड़ा सा हायर लेवल पे है, हायर लेवल पे, सो क्या करेगा, एब्डोमेन पे यहाँ पे तो मार्क आ गया, एब्रेजन कंट्यूजन हो सकता है, बावल इंजरीज हो गई और वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो गया। ये ट्रायड जो मिलता है, दिस इज ए सीट बेल्ट सिंड्रोम, इस तरह का ओब्लिकली पास करता है। सो इट कैन कोज द फ्रैक्चर ऑफ रिब्स, फ्रैक्चर ऑफ स्टर्नम, कार्डियक इंजरीज, लंग लैसरेशंस, लीवर लैसरेशंस, स्प्लिनिक टीयर्स, इंटेस्टाइनल इंजरीज, और ये वाला जो लैप बेल्ट है ये कराएगा आपका बाउल परफोरेशन और वर्टिब्रल टीयर्स, ओके। लोकल एब्रेजन एंड कंट्यूजन चेस्ट वॉल पे आपको मिल सकते हैं। एक आता है लैप बेल्ट सिंड्रोम। लैप बेल्ट की वजह से क्या क्या हो सकता है, आउर्टा पास कर रही है यहाँ से, सो आउर्टिक टीयर, एब्डोमिनल आउर्टिक टीयर, बावल इंजरीज एंड लंबर स्पाइन फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, ये करेक्टरिस्टिकली सीन, दिस इज सीन इन लैप बेल्ट। इस तरह का बेल्ट जाता है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसवर्सली पास कर रहा है ये बेल्ट। इसमें क्या होता है, ये बेल्ट ऐसे पास कर रहा है तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इसके अराउंड फ्लैक्शन मोमेंट होती है, लाइक ये लैप बेल्ट है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट इस तरह से, एंड दिस बेल्ट एक्ट्स एज ए फल्क्रम, और ये जो बॉडी है आगे अपर एंड लोअर पार्ट ये फ्लैक्शन आउट हो जाता है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इंजरीज होती हैं, वर्टिब्रल स्पाइन फ्रैक्चर्स, बावल इंजरीज एंड आउर्टिक टीयर्स। ये ट्रायड इज करेक्टरिस्टिकली नोन एज लैप बेल्ट सिंड्रोम। यू कैन ऑब्जर्व दिस इज द मार्क ऑफ दिस lap belt, abraded contusion. You can observe the superficial abrasions which is contused over there. So this abraded contusion passing horizontally below the umbilicus is characteristically seen in lap belt injuries. फ्रैक्चर जो होता है वर्टिब्रा में वो फ्लैक्शन डिस्ट्रैक्शन फ्रैक्चर होता है, जिसको बोलते हैं चांस फ्रैक्चर, क्योंकि स्पाइन जब फ्लैक्स करता है आगे की तरफ तो एक्सटेंड्स टू मच फोर्स लगता है उसकी वजह से। तो 3 टाइप की इंजरीज बेसिकली होती हैं, जिसमें बोन को इंजरीज होती है, लिगामेंट को और डिस्क को इंजरीज होती है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, ये जो बोन है वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा इसको इंजरी हो रही है, एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट को इंजरी हो रही है, ठीक है, एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है इसको इंजरी हो रही है, इसको बोलते हैं चांस फ्रैक्चर, चांस फ्रैक्चर, ओके। सो ये फ्रैक्चर लाइन आपको देख रहा है, वर्टिब्रा का फ्रैक्चर है, डिस्क को इंजरी हो रही है, लिगामेंट टूटे हुए हैं, एंड दिस बोन द वर्टिब्रा एंड स्पाइन इज आल्सो फ्रैक्चर्ड। होता क्या है बेसिकली, ये होता है इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ लैप बेल्ट। लैप बेल्ट को प्लेस करते हैं ऊपर और द एब्डोमेन, तो इसलिए क्या होता है ऊपर और नीचे वाला जो पार्ट है ये फ्लैक्शन की वजह से, एंड दिस बेल्ट इज एक्टिंग एज ए फल्क्रम,
इसलिए ये सारे वर्टिबल टीयर बाउल इंजरीज एंड ऑर्टिक लैसरेशंस होते हैं। बट प्रॉपर प्लेसमेंट जो होता है ये हिप के ऊपर इस लेवल पे लैप बेल्ट का प्लेसमेंट, दिस इज द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ लैप बेल्ट। लोअर लेवल ऊपर करने से लैप बेल्ट इंजरीज होती हैं। ओके, नाउ गाइस एयर बैग इंजरीज। एयर बैग बहुत प्रोटेक्ट करता है, यू नो दैट इट प्रोटेक्ट्स, बट एयर बैग से फोर आर्म में इंजरीज हो सकती हैं, आपके फेस पे लाइक कॉर्नियल लैसरेशंस, फेस पे टीयर्स हो सकते हैं, फ्रैक्चर एब्रेजन्स, आई इंजरीज हो सकती हैं, लिप लैसरेशंस हो सकते हैं, चेस्ट इंजरीज आर ऑल्सो कैन अकर ड्यू टू एयर बैग्स। एयर बैग की मैकेनिज्म देख लेते हैं। एयर बैग में क्या होता है, ये आपका स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग व्हील जिसमें एयर बैग लगा हुआ है, यहाँ पे इन्फ्लेटर होता है एक, ठीक है, जिसमें जब सेंसर है, क्रैश सेंसर इसको सेंस करता है, सेंस करके सोडियम एजाइड इसके अंदर भरा होता है। सोडियम एजाइड जब रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद में गैस बनती है नाइट्रोजन गैस, जिससे ये जो एयर बैग है वो इन्फ्लेट हो जाता है, इन्फ्लेट होकर आपका फेस पे आ जाता है एंड प्रोटेक्ट करता है आपको स्टीयरिंग व्हील और अदर इम्पैक्ट से, जब एकदम से जो क्रैश है उसको सेंस करता है सेंसर, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एयर बैग। एयर बैग इंजरीज होगी। सो बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पेडिस्ट्रियन इंजरीज, प्राइमरी सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरीज, सेकेंडरी इंजरीज, फिर आपका जो विप्लैश क्या है, शीट बेल्ट क्या होता है, लैप बेल्ट सिंड्रोम क्या होता है, मार्शल ट्राइड क्या होता है, एयर बैग इंजरीज क्या होती हैं। सो दिस टॉपिक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, हर बार एक क्वेश्चन और एमसीक्यू आता है। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड like, comment and please suggest some important topic of your interest. So thank you so much.